This is better. आंटी आपके लिए मैंने क्या सेटअप करवाया यहाँ पर? What is that? Oh my God, drums made you up. हाँ, because my nephew does all this. मैंने उसका बोरो करे हुए हैं. हाँ, या Symbols. आप देखो ना हम कैसे सेट लग रहे हैं. मैं एक स्टूडियो में, आप एक जगह पे क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग रूम टाइप लग रहा है वो ड्रम सेट के साथ. रश्मित हमारी स्टार बैठी है. I know, and I don't have a musical note in me, but I love music. But I can't, sing to save my life. So, but I am very happy to have the two of you. And रफ्तार एक बात बोलूं, 2 साल से I have been after your team की मिलवा दो भाई, मिलवा दो, जैसे आप कुछ होने दो. So I think this was the song I was waiting for. I got both. किया ही नहीं मैंने, कुछ किया भी नहीं मैंने एक्चुअली में यार. माहौल था, आपको लगता है ऐसा इतना आसपास बहुत सैड हो रखा था. कुछ काफी डिमाइसेस भी हुए घर के आसपास, घर में, दोस्तों में. I know. Now I think people are fighting back और अच्छा एक they're learning to live again. तो अब सही माहौल है. People are getting their jobs back and all that. Yes. Yeah. And I we are getting to perform again. Exactly. And there's a music heals, and both of you have given us quite the anthem. So as I was telling Rashmi, मैं जब भी आपके गाने के व्यूज देती हूँ ना, वो 1 और मिलियन से ऊपर हो जाते हैं. So I've lost count now. I am not even seeing कितने व्यूज हैं इसके. So comments में पहले जरा आपको बता दूं कुछ जो मैंने पढ़े हैं. It says commercial indigenous hip hop. Raftaar does not disappoint. Rashmi has given us just a song that we can sing along and heal ourselves. Malayali boy singing fluent Haryanvi in Rajasthan. I mean, and then it says when the song starts and when it ends, हमको पता ही नहीं चलता इन दोनों ने करा क्या है. So wow, देखो. What do you have to say for the love that you're getting? Rashmi, go ahead. I think we are so grateful and for all the love that we get every time with every release. And हमारे लिए I think artists के लिए यही positive response होना, जैसे कि हम बात कर रहे थे, positive response होना ही हमारे लिए सब कुछ है. So that means a lot, that means the world to us. So I'm so happy that कि we have this collaboration and it reaches more and more people, and more people get lost. जैसे कि आप बोल रहे हो, zone में चले जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि गाना start कब होता है और खत्म कब होता है. So I think we are able to achieve and reach to people through our music, and we are contributing in the society. That's what matters the most. Yeah. So it's fun that people are loving it. Yeah. ये तो बहुत देखो सिंपल. मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर बार एक नया पंगा लेता हूँ और वो नया पंगा लोगों को पसंद आ जाता है. लोग मुझे उस पर भी प्यार देते हैं. फिर उससे मेरा दिल खुलता है कि यार मुझे और पंगे लेने चाहिए. तो मुझे लोगों ने पंगेबाज कलाकार बना दिया है. लाइक दे लव मी डूइंग एनीथिंग. मैं कुछ करता हूँ वो एक्सेप्ट करते हैं. तो इससे ज्यादा खुशी एक आर्टिस्ट के लिए नहीं होगी. Rashmeet, on the same hand, मतलब Rashmeet can sing this kind of songs, very classical, very western, and Rashmeet also raps. उसे rap भी किया अभी पीछे. तो it's like सारे ही बंदे ऐसी हैं कि वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग हमें वो परमिशन दे रहे हैं क्योंकि वी आर केटरिंग टू पीपल. इफ दे डोंट वांट टू हैव इट, फिर हमारा वो चीज प्रोडक्ट को उनको जबरदस्ती थोपने का कुछ बनता नहीं है. देन ऑन टू द नेक्स्ट वन. And there is no 100%. bad or sulking. There are times when people will love your stuff. There are times when people will be like, yeah, this is okay. We expect better from you. So it's just fine, man. Yeah. Your job is to keep on making these bangers so people at home can have a great time. That's what. Absolutely. वही लिखा है किसी ने, रफ्तार भाई is back, the original रफ्तार भाई. बट मैं आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ. ये देखो टी शर्ट पे लिखा I feel like a new me. आज तो आपकी बात मैच कर गई एकदम. देखो, we are totally in sync as they say. Yeah, we are in sync. Rashmi, जैसे आप you gave us Bajireda Sitta also, and Nadiyon Par, and then there is Raftaar. Both of you, what does it take to create an anthem? Because ऐसा लगता है कि each time you both do something, वो anthem बन जाता है. What actually takes to create an anthem, like, Again, I would say जैसे कि हम दोनों का जो as an artist level पे जो हमारा frequency match करता है कि हम we are always ready to experiment with the stuff that we want to create together. He's always giving me tips and bits in जो भी हम studio में साथ में काम करते हैं. We are always learning from each other and growing together as a clan, as a परिवार, कलमकार जो हमारा जो पूरा स्क्वाड है. So it always helps when you are ready to take कि आपके जो साथ में आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, you are open to
you're willing to listen to the artist कि उसके क्या inputs हैं actually में. So I think I would like to give all the credit to Raftaar bhai for this. He's always listening and he's always incorporating whatever I have to give. कि अच्छा ये करना है तो ये करके देखते हैं. He's always ready. I think that's what matters the most. क्योंकि वो फिर आपके लिए एक opening हो जाती है कि और नया क्या हो सकता है. And that's what I feel creates anthems, you know. Absolutely. परिवार vibe. Yeah. बताओ. देखो ये कान बहुत खाती है और फिर डांट भी बहुत खाती है, डांट भी बहुत खाती है. ये होता है हमारा दिन. ये आती है तो भाई इसमें ऐसे ऐसे ये फिर आपने ये वाला सुना क्या हुआ, उसके पीछे गाना लिख रहा हूँ, गाने के पीछे कहीं और पहुंच गया, आपने ये वाला गाना सुना है क्या, अरे आपने इसको देखा, अरे कितना सही वीडियो. ये इसको पता नहीं क्या, ये एक जगह से दूसरी जगह ऐसे टप्पे खाती है. मेरे को इसको ऐसे लगा रश्मीत खड़ के बह जाऊं, ऐसे करना होता है. मैंने वीडियोस रिकॉर्ड कर रखी है. इसको एक बार इसको और आकाशा को साथ छोड़ दिया मैंने माइक पे. यहाँ माइक पीछे था और दोनों लेफ्ट राइट पे खड़े हैं उसके, और मैं कोरस करा रहा हूँ, साथ में करना है कॉयर की तरह इनको, और डुएट कर रहे हैं मतलब. हाँ, और रिकॉर्डिंग का बटन दबाने का मौका नहीं मिल रहा है. 5 मिनट की रिकॉर्डिंग में मैं ऐसे रिकॉर्डिंग के बटन पे हाथ रख के बैठा हूँ और सिर्फ इनको देख रहा हूँ. ये मुझे देख ही नहीं रहे हैं, ये लगे हुए हैं, मैं इनको ऐसे देख रहा हूँ. ओपन जैम. ये लगे हुए हैं, कुछ भी चल रहा है, कोई दूसरा गाना गा रहे हैं, यहाँ पे हेडफोन पहन रखे हैं, पता है कि रिकॉर्डिंग होगी, तो इनका ये वो रहता है ऐसा. पर जब काम करती है ना हमारी बच्ची, तो वन टेक आर्टिस्ट है. मुझे वही चाहिए, जितनी मर्जी मस्ती कर, क्योंकि ये जो मस्ती है ना, उस मस्ती के बीच में कभी कभी ना ये कोई बात बोल देती है, या मैं कोई बात बोल देता हूँ, या कुछ ऐसी चीज निकल जाती है कि उससे होता है कि ये तूने बात बोली ना, जो तूने अभी बात बोली है, ये बहुत रिलेटेबल है. Yes. इसके ऊपर हमें कुछ लिखना चाहिए. तो the main thing is you two like artists to collaborate together should sit and jam about whatever they like, discuss things, share, मतलब अपने गाने शेयर करो कि यार मैं ये गाना सुन रहा हूँ आजकल, ये सुनो. उसके बाद ना एक कॉमन थॉट निकलता है कहीं से भी, या कोई कॉमन बात छिड़ जाती है, उसका मतलब होता है कि वी आर इन सिंक, जैसे आपने बोला. वो सिंक क्रिएट होने के बाद तो फिर आधे घंटे के अंदर सारे वोकल रिकॉर्ड, चाहे कितने भी हारमोनी हो, कुछ भी हो, रश्मीत वन टेक, लिखने का काम आधे घंटे के अंदर सॉर्टेड, हम पूरा गाना लिख के छापा छापी, बस कुछ नहीं, फिर तो इट्स जस्ट फ्लाइंग बाय. And you know, your song is just so vibrant. I know it's going to be playing out in every marriage. And when Rashmi also gave us, Bajra Sitta and everything, everyone I knew was singing that song. And wahi Raftaar ji, aapke bas, everybody's just waiting to hear, listen to you coming up with new collaborations. But it's very interesting, both your journeys as well, because मैं पढ़ रही थी, somebody has written to someone on YouTube saying that डांस इंडिया डांस पता है, रफ्तार was rejected, अब देखो वो कहाँ पहुंच गए. And that is actually very inspiring for people who take rejections to heart and think this is the end. What would you want to say, about your journey? And then I'll come to Rashmi. See, मैं जब एलिमिनेट हो रहा था ना उसी एपिसोड में DID के, तो मैंने ये बोला कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड फॉर मी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी. मैंने ये बात तब बोली थी और मैं बहुत बच्चा था कि कोई बात नहीं, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, पर यहाँ से तो शुरुआत है, हम वापस आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आएंगे. बच्चे ने तो ऐसे मैनिफेस्ट कर दिया मैंने हवा में. इट वाज जस्ट दैट फर्म बिलीफ आई हैड इन मी. उसके बाद 8 साल के बाद आई जज्ड डांस इंडिया डांस. सो इट्स अबाउट डूइंग. देखो कंपटीशन की बात यह है कि जब एक बार कोई जीत जाता है ना, तो वो विनर हो जाता है, फिर खत्म, उसके पास कहानियां नहीं बचती. जब कोई बार बार हारता है ना, तो उसके बाद उसके पास स्टोरी बनती है, और कहानियां उन पे ही बनती हैं जो गिर के उठते हैं. सॉरी, सीधा जीत जाते हो ना, कोई नहीं सीरियस लेना तुम्हें, जो एक बारी में जीत जाते हो तुम. Totally. Rashmi, what would you also want to say? You started a very interesting journey as well. जी, so I also did a couple of reality shows. और जैसे अफ्तार भाई ने कहा, like एक बार आप जीत जाते हो, फिर मुश्किल हो जाता है आपके लिए स्टोरी क्रिएट करना. So I also did Saregama, Top 40 उधर किया, and then Asia Singing Superstar, Asia Level किया, and then remix Amazon Prime I won. So then after that actually the real journey starts, अगर आप जीत गए उसके बाद क्या, then what do you have, right? So I think it's the never, what matters the most is you can never stop. अगर घना कसूता भी आ गया, बाजरा सिट्टा भी आ गया, अब क्या, जिस दिन गाना रिलीज हुआ है, जिस दिन भी गाना रिलीज होता है, उसी दिन मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ भगवान का, इसलिए इस बात पे आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर दिस, दैट
and I want it to continue in my life. जिस दिन भी गाना रिलीज होता है उसी दिन शाम को मुझे कोई स्टूडियो से कॉल आता है और मेरा सेशन होता है एक दूसरे गाने का. So that is that direction which is given to me, which I'm very grateful for, is what I really want to stay with me for the rest of my life, because I think we can never stop creating. अगर हम ऐसे भी normally भी मिलते हैं ना, shows पे भी मिलते हैं, तब भी we always keep talking about music. जैसे इन्होंने बोला कि हम share करते हैं हम कौन से artist सुन रहे हैं. So I think that's what keeps you going and matters the most. True. Yeah. And Afsar ji, आपके लिए जैसे लोग कह रहे हैं, the old fire is back now. What can we expect now since the fire is back, burning bright? फायर अगर वापस है तो मतलब इसके जब आग लगती है उसके बाद राख ही मिलती है. ये तो फिलोसोफर भी है. सही बोले यार. सब हैं, सब हैं. It's going to be destructive and I believe. अच्छा मैं सीधा जवाब देता हूँ. गाने बनाना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि अब मेरे को सच्ची में ऐसा लग रहा है कि इट्स द राइट टाइम. लोग बाहर निकल रहे हैं. देखो अब शो स्टार्ट हो गए हैं लोगों के. बच्चे स्कूल जाने शुरू करने की तैयारी हो रही है. नौकरियों पे जाने की शुरू. पीपल आर बिगिनिंग टू गेट आउट ऑफ देयर होम्स कंप्लीटली. So अब we are going back to our lives, man. तो उस टाइम पे मैं जैसा it's going to be the same scene again. It's going to be Raftaar season all over again. And I want to ask the two of you, because we've seen indie music also in the last 2 years has made huge headway. Artists like you are not stuck to any label. You have been doing your independent music, collaborations with labels. Going forward, what is the one change personally you want to see? Because a lot of artists feel they don't want to get, what they say, clustered by labels and other things. Let them make our music, because आजकल digital भी है, सबको सब कुछ मिलता है. देखो, आपको ना एक बहुत सिंपल सा चॉइस बनाना है. बहुत सिंपल सा चॉइस बनाना है कि आप गाना करते हो अपने बजट में, आगे डालते हो, उसके बाद लोग उसको देखते हैं. मतलब यू गेट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बजट टू पुट योर स्टफ आउट. जैसे कि इंडिपेंडेंट में कि आपने अपने दोस्त को बोला कि यार मेरा फ्री में शूट कर दे, अच्छी बात है, और किसी और ने एडिट कर दिया. ये सब करना चाहिए, अच्छी चीज है. पर एक टाइम के बाद क्या होता है ना, आफ्टर अ सर्टेन टाइम फिर आर्टिस्ट को ये फील होने लग जाता है कि यार आई वांट माय वीडियो टू बी अ पर्टिकुलर वे. ऐसे मैंने एनविजन किया है, मेरी डायरेक्शन ये कहती है, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ दिखाऊं. उसके लिए चाहिए होता है एक बिग बजट. वहां पे आते हैं लेबल्स. अब नाउ द लेबल्स हैव आल्सो स्टार्टेड वर्किंग विद आर्टिस्ट्स इन अ वेरी कोलैबोरेटिव मैनर. जैसे हमने ये वाला गाना किया था तो हम ही से सजेशंस लिए गए थे कि सारे कि आपको किस टाइप को वीडियो चाहिए, किस टाइप का क्या चाहिए, आप किस डायरेक्टर से कराना चाहते हैं. तो सब कुछ हमने किया है. वो लोगों ने पूरा साथ दिया है. सेट पे आके कोई कुछ नहीं, हम सिर्फ उनसे ये परमिशन लेते थे अगर हम ऐसा शॉट लेंगे कुछ तो कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ सेंसर में कट सकता है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन के लिए हम साथ रखते हैं. दे कंप्लीटली सपोर्ट अस कि ये मत करो, ये करो. क्योंकि मैंने काफी फील किया कि कई लेवल्स में ऐसा होता है कि वो ध्यान नहीं देते. उनमें से कोई वहां जाके पूछता भी नहीं है कि मतलब हाँ कर रहे हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम हो गई है, अरे ये तो गाने का टेम्पो ही बदला हुआ था, सिंक नहीं हो रहा गाना, हुन की करिए. अच्छा ये शॉर्ट पानी सेंसर कराना पैना, उन्हें कट देना सारा कुछ, की करिए हुन. तो ये ना लास्ट मोमेंट जो पंगे होते हैं ना, वो अगर आप चाहते हो नहीं हो तो आपको सिर्फ एक बड़ा सा लेबल चाहिए होता है जो उस तरीके से काम करे. अगर आप इंडिपेंडेंट अच्छे तरीके से कर रहे हो तो आप इंडिपेंडेंट करो. आज की डेट में इंडिपेंडेंट और लेबल में कोई फर्क नहीं है. आई एम एन इंडिपेंडेंट गाय हु कैन वर्क विद अ लेबल. I work on my own label. I can work with anybody else, but there are certain dreams you see with certain kind of individual. अब उनको अब Sony completely doesn't know how to do this kind of hip hop that's coming out in India. जो मैं करना चाहता हूँ, जिस टाइप का मैं करना चाह रहा हूँ आगे. पर वो ये जरूर जान सकते हैं कि हिप हॉप को एक बाकी एलिमेंट्स से मिक्स करके कैसे उसको दिखा सकते हैं कि what can be a route that people see hip hop through. Create music and you come and join us. And what else they can do? They will do like a Sony and Kalamkar getting together and then artists performing, artists doing something. In fact, man, I remember I wasn't even a Sony artist when I did the YouTube show for them. YouTube show Kalamkar ने किया था. We were not signed to Sony and अभी उसके भी 1.5 साल बाद साइन हुआ मेरा. कुछ नहीं था ऐसा. It's just the right kind of people supporting the right kind of people. Absolutely get that. आपको वो ढूंढना है बस. Totally. जो आपके प्लान्स को, जो आपके विजन को एग्जीक्यूट कर सके. जी. And Rashmi, also it's interesting, you've done films also, and everybody now the artists also said
They don't want to be known as just film singers, playback singers also. वो भी अब आ रहा है, you know, because they're branching out, creating their own singles and coming out as well. Yeah. And it's not nice like when you have an actor's face to your voice. A lot of them said, yeah, मैं ही कर लेती हूँ ना acting. Like Sunidhi Chauhan said that. Yeah, I think एक गाना अगर मैंने गाया है तो उसको जितना जस्टिफाई मैं कर पाऊंगी स्क्रीन पे, आई एम नॉट सेइंग कि कोई और नहीं कर पाएगा. ऑफ कोर्स एक्टर्स आर देयर टू यू नो गिव अ फेस टू द सॉन्ग, बट मैं जितनी बार भी ऑनेस्टली व्हाट्स माय टेक ऑन इट, मैं जितनी बार भी कैमरा मेरे सामने आएगा और मैं म्यूजिक वीडियो में, मैं उतनी बार ही रियल में गाती हूँ गाना. मतलब आवाज निकल रही होती है जबकि गाना इज देयर, इट्स प्लेइंग ऑन द बैकग्राउंड, इट्स प्लेइंग इन द बैकग्राउंड एंड वी जस्ट हैव टू एक्ट, राइट? But I actually sing because it naturally comes out because I'm a singer songwriter first, right? Absolutely. And then I have to act what I sang. So I think that gives a kind of, you know, authenticity. It looks authentic on the screen, जो I think कभी-कभी actors नहीं कर पाते हैं क्योंकि because of the barrier of the language और बहुत सारी चीजें, अलग reasons हो सकते हैं. किसी को म्यूजिक का उतना नहीं होता है, किसी को होता है, कोई इतने बखूबी निभा पाता है, like रणबीर कपूर when he did ऐ दिल है मुश्किल. Like he just acted that song through his eyes, you know. Just that bit is so strong and powerful that कि आपको लगेगा ही नहीं कि उन्होंने नहीं गाया. So I think that somehow it works in my favor that I sang the song originally and then मैं उसको उतने ही अच्छे से निभा पाती हूँ on screen भी, कैमरा पर भी. और फिर vibe तो फिर है ही, जो swag जो है थोड़ा बहुत सिखाया है टीम है, you know. सही में. और अब दोनों का स्वैग है ना. टेल मी, जाते जाते किसके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं आप? सर हिप हॉप ला रहे हैं एंड आप बताओ, हु डू यू वांट टू एक्चुअली कोलैबोरेट विद ऑन योर विश लिस्ट? I think Rashmi really would love to collaborate with Beyonce for sure, man. Beyonce and Rashmi, he knows everything about. They will be perfect in sync. उसके साथ थोड़ा पंजाबी भांगड़ा भी करवा देना, like पंजाबी वाइब. Full on. मैनिफेस्ट करो. मैं तो कहता हूँ मैनिफेस्ट करो. इतने हवाई फायरिंग करनी चाहिए ना, इतने तीर हवा में मारने चाहिए ना. 100% bro. ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा. जिस दिन होता है ना फिर हाय हाय हाय. I mean, अपना डायनामाइट है. Collaboration, I would give you the best example right now. Weeknd collaborated with Rosalia on this new song, new track. And Weeknd learned Spanish for that. I think it's Spanish. वो तो उसने भी किया था ना, ड्रेक सॉन्ग. हाँ जी. So when you collaborate, you have to learn and you go through some process, you know, where you learn and grow with the process. So I think collaborate करना मेरे लिए तो बहुत important है. मैं जितने लोगों के साथ कर पाऊंगी उतना अच्छा है मेरे लिए. And हम साथ में तो कर ही रहे हैं. I always keep learning when I'm around. कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं. कुछ ना कुछ. हाँ जी, always. So yeah, hopefully Beyonce, John Mayer, Drake. वाह, मुझे भी साथ ले जाना यार. आजकल तो हमारे बच्चा पार्टी यहाँ पर K-pop पे है. हाँ, मतलब वो भी कर सकते हैं यार. मतलब it would be so interesting if there's a K-pop band and we do like a Hindi version of, you know, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता? Who says you can't blend when you can have Ludacris and Justin Bieber in the beginning? Baby जब आया था, nobody thought कि Ludacris जैसा इतना grown बंदा Justin Bieber के गाने पे आएगा. Killed it, he murdered that song. You mixing and blending is always the origin of something new. लोग जो evolution को रोकने जाते हैं ना, वो फिर पिछड़े वर्ग के हो जाते हैं और आगे सिर्फ और सिर्फ इवॉल्व स्पीशीज जाती है. जो स्पीशीज इवॉल्व नहीं हो जाती वो एक्सटिंक्ट हो जाती है. ये हमारी हिस्ट्री कहती है. ये सब है, राइट? जी, एब्सोल्युटली. एंड अफ्तार जी, एक बात बताओ, दैट वाज समबडी सेड मलयाली बॉय इतनी सोनी पंजाबी हरियाणवी कैसे बोल लेता है यार? मेरी भी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी है. नहीं, मैं बस यार मैं क्यूरियस बहुत था. मेरे को लैंग्वेजेस पसंद बहुत आते हैं और मेरे यार दोस्त भी ऐसे रहे ना कि वो जब कुछ बात बोलते थे तो मेरे को लगता था यार ये इसने बड़े सही तरीके से बोला, ये तो बड़ा सही लग रहा है. तो ऐसे करते करते यार इट्स जस्ट द सर्कल. अब दिस इज अ फेवरेट पंजाबी फ्रेज एक्चुअली. यार कैन एनीथिंग बी ओ ਚੱਕਰੇ ਕਿਦਾਂ ਫੇਰੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ? I mean, he's Malayali, South Indian, but he always talks to me in Punjabi. So can you imagine? I mean, the urge of always learning बहुत आगे लेके जाती है. हाँ, मतलब यही मेरी ब्रशिंग अप है. जैसे ये स्टूडियो आ जाती है तो मैं इससे पंजाबी में बात करता हूँ और जो मिलता है फिर कोई जाट मेरे दोस्त हैं उनसे बात करना, क्या हाल है, हरियाणवी चल रहा होता है, राइट? He's always कोई गुज्जर दोस्त है नाम ऑन रहा तो उससे ही बात चलती रहती है. तो वही
यार रफ्तार जी एक बात बताओ, is there something that you can't do? No, there is nothing. भाषाओं में बात कर लेते हो, गाना गा लेते हो, मैथ नहीं म्यूजिक आती बना मेरे को लेते हो, यार, हंसा देते हो, फिलोसफी दे देते हो, is there something that you can't do? मैथ नहीं आती मेरे को यार। अरे वो सब वो क्रिएटिव लोड भी लोगों नहीं को है bro, मैथ करण नहीं दी। आती। पैसे गिनने और आते करण दी हैं, लोड भी नहीं है। सबको पैसे गिनने आते हैं, मैथ किसी को नहीं आती। आओ, ओरिजिनल वही है। खर्चे पता है, किस्तें पता है, चेक जिस दिन आना है पता है, चेक जिस दिन जाना है पता है, बस। That's what matters. वही चाहिए। सही में लवली चैटिंग विद यू। वो थोड़ा सा हमारे लिए गाना गुनगुना सकते हैं ये वाला, कि सारे खुश हो जाएंगे, जी। आपके फैंस उनके लिए मैसेज दे दीजिए बस। हाँ जी। गो रश्मीत, 1 2 3। जब गाम का छोरा काट के टोरा चोरी चोरी ताके से मन घना कसूता लागे से मन घना कसूता लागे से तेरे पैर जमीन पे रुकते ना जब मेरा गाना बाजे से, मन घना कसूता लागे से मन घना कसूता कसूता लागे लागे से। Awesome. Thank you so much. Hey! More power to both of you, man. सिक रहा। सिंपल काम आ गया आखिर हाँ। में, आखिर में सिंपल काम आ गया। No, thank you so much. थैंक यू सो मच पूजा जी, अपने नेफ्यू को बोलना Thank कि you, जो पूजा करता है ना करता रहे। हाँ, he's very good with this. That's all you need to tell him कि keep at it. Very nice. I'll do that. Thank you so much, both of you. More power to you. अब वो नंबर गिनने तो मैं नहीं करूंगी गाने के, मालूम नहीं कितने करोड़, कितने लाख, कितने मिलियन हो गए। हो जाएंगे अभी बस तो। प्यार। हाँ बस चलेगा, आपको अच्छा लग रहा है ना, आप बजाते रहना बस। हाँ, बस वही है। थैंक यू सो मच। All right. Thank you so much. You Thank too, you. both of you. Take care. Bye-bye. Bye. Bye.